today's lecture. Today we will do the problems from textbook. The problems from the textbook. First of all, we'll do the problems on differentiability, exercise 5.2. This is my exercise 5.2. Exercise 5.2. The question number first is, कह रहा है कि differentiate sine of x square plus 5 with respect to x. With respect to x. Differentiate sine of x square plus 5 with respect to x. So what we will do, solution में अगर मैं रखूँगा y is equal to sine of x square plus 5, फिर हमें मालूम है कि differentiation of y with respect to x is equal to, मतलब शॉर्टकट में अगर मैं देखूँगा साइन की डिफरेंशिएशन cos, साथ में एक क्वांटिटी ऐसी रहेगी x square plus 5 into x square plus 5 की इंटरनल डिफरेंशिएशन वो मल्टीप्लाई होगी into d by dx of x square plus 5. So this is equal to cos of x square plus 5 into ये बनेगा 2x plus 0, वो तो 2x बनेगा. आप शॉर्ट में याद रखेंगे साइन की डिफरेंशिएशन cos लिखनी है तो जो इसकी डिफरेंशिएशन है अंदर वाली फंक्शन की वो मल्टीप्लाई होती है. या हम चेन रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ऐसे अगर इसके 3 मार्क्स होंगे देन यूज द चेन रूल, अगर 1 मार्क्स होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं. सो आपके पास y है, इट्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5. आई विल नेम इट फर्स्ट. लेट u is equal to x square plus 5. Therefore, what is du divided by dx? Therefore, du upon dx, that is equal to 2x. From first we have, so what we have, y is equal to sine of x square plus 5 is u. Therefore, dy divided by y की डिफरेंशिएशन होगी with respect to u. dy divided by du is equal to cos of u. Then we will apply the chain rule. Chain rule is, actually I had to find dy divided by dx. That will be equal to dy divided by du into du upon dx. What is my dy upon du? That's my cos of u. That is my cos of u. Cos of u यहाँ पर into du divided by dx is 2x. So I got 2x times cos of u का वैल्यू मैंने रखा था x square plus 5. तो हमने डिफरेंशिएशन कर दी by applying the chain rule. Likewise, अगर हमारे पास ये ऐसे है, डिफरेंशिएट secant of tan of root of x. So आप लिखेंगे let y is equal to secant of tan of root of x. We know differentiation of secant theta. आप सबको मालूम होगा differentiation of secant theta, that is equal to secant theta tan theta. So अगर मैं y की डिफरेंशिएशन करूंगा आएगा dy divided by dx, that is equal to secant, इस सारे को आप मान लीजिए थीटा, secant थीटा की डिफरेंशिएशन आएगी secant थीटा tan थीटा. So आएगा secant of tan of root x into tan of थीटा, आएगा tan of, ये थीटा मैं मान रहा हूं,
tan ऑफ रूट एक्स, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई होगा, ये जो अंदर वाली फंक्शन है tan की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी, tan की डिफरेंशिएशन आती है सीकेंट स्क्वायर, थीटा मान लीजिए आप रूट एक्स, फिर रूट एक्स की इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी, रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स हो गया। देख लीजिए मैं इसको कर सकता हूं बाय चेन रूल, आई कैन डू द सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग चेन रूल। Question number 4, let y is equivalent to secant of tan of root x. I will name it first, इसका नाम मैं रखूंगा फर्स्ट। let u is equivalent to tan of root x, ठीक है। therefore what is, let u is equivalent to root of x, root of x, therefore आप मुझे बताइए what is du divided by dx, root x की डिफरेंशिएशन it is 1 divided by 2 root x, then after you will put tan, therefore from first जो आपका y बनेगा वो क्या आएगा, secant of tan of रूट x के बदले में लिखूंगा u, बिकॉज मैंने रूट एक्स सेट किया है u के बराबर। देन आफ्टर आई विल फर्दर मेक ए सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम मैं रखूंगा सेकेंड। लेट v इज इक्वल टू tan ऑफ u। अब अगर v की डिफरेंशिएशन होगी वो होगी विद रिस्पेक्ट टू u, मीन्स dv अपॉन du, इट विल बी इक्वलेंट tan की डिफरेंशिएशन दैट इज secant square u। फ्रॉम सेकेंड व्हाट वी हैव, from second what we have y is equivalent to secant of tan of u के बदले में लिखूंगा v, therefore dy upon dv, y की डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू v, that will be equivalent to secant v multiplied by tan of v, ठीक है। Therefore actually I had to find dy upon dx। क्या लगता है आपको कैसे लिखेंगे dy upon dx को? मैं लिखूंगा dy upon dv, मैंने लिखा, into dv upon du, वो भी मैंने लिखा, into du upon dx, वो भी मैंने लिखा, du upon dx। देख लीजिए dv कैंसल, du कैंसल, I will get dy by dx। But what is dy upon dv? That is secant v tan of v. What is dv upon du? dv upon du, हाँ, that is secant square u. That is secant square u into du upon dx. du upon dx, that is 1 divided by 2 under root of x. So this is equivalent to secant of v का वैल्यू तो मुझे मालूम है, that is tan of u, मैंने लिख दिया tan of u। tan of v का वैल्यू अगेन tan of u मल्टीप्लाइड बाई secant स्क्वायर, अभी तो सारा u में ही है, इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। ऊपर अब मैं u का वैल्यू देता हूं, u का वैल्यू मैं ऊपर अब सब्स्टिट्यूट करता हूं जो कि रूट एक्स है। इस क्वांटिटी को मैं यहां पर लिख देता हूं। सो मैं dy upon dx it will be equivalent to secant of tan of u, तो आएगा secant of tan of u के बदले मुझे लिखना है रूट एक्स, फिर tan of u मुझे लिखना है tan of u के बदले में लिखूंगा रूट एक्स, secant square u यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, secant square u के बदले लिखना है रूट एक्स, वो भी मैंने लिखा, इंटू 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। तो ये आपके सामने आ गई डिफरेंशिएशन। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया हाउ टू यूज द चेन रूल। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को लगेगा एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स वाला रूल, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। वी नो द फॉर्मूला, इट इज जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। फिर हम जी ऑफ एक्स को ऐसे लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस करते हैं, फिर फिर एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिखाऊंगा, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर 5। इसकी हमें डिफरेंशिएशन करना, इसको लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स वाला रूल, इसको लगेगा मतलब ये वाला रूल इसको लगेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स। वही नो, एक फंक्शन को ऐसे लिखना है, एफ ऑफ एक्स को मैं ऐसे लिख देता हूं इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मैं ऐसे लिखूंगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर यहां पर dy अपॉन dx, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख देता हूं, वेल इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस y। मैं cos x क्यूब को ऐसे लिख देता हूं इनटू इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं साइन स्क्वायर x पावर 5 की। साइन स्क्वायर आप मान लीजिए x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आती है 2x, तो साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आएगी ट्वाइस साइन ऑफ x पावर 5। फिर साइन की इंटरनल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगी, वो होती है cos, मगर x पावर 5 ऐसे रहेगा। फिर x पावर 5 की इंटरनल डिफरेंशिएशन होगी, दैट्स 5x रेज पावर 4 प्लस, अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन तो होगी, अब मैं साइन स्क्वायर x पावर 5 को ऐसे लिखूंगा, इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा cos x क्यूब की। cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन, साथ में आएगा x क्यूब, फिर x क्यूब की इंटरनल डिफरेंशिएशन तो आएगी 3x स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए तो हो गई डिफरेंशिएशन। 5 इंटू 2 दैट्स 10 आएगा 10 टाइम्स, एक मिनट 5 में सामने लिख देता हूं, हो गया 5 cos x क्यूब, ये नहीं बन गया ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा मेरे पास होता है ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ 2 थीटा। अब थीटा के बदले मेरे पास x पावर 5 है, तो यह आएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स x रेज पावर 5, और साथ में x पावर 4, ये मैंने ऐसे ही लिखा। फिर प्लस माइनस इज माइनस, 3x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा 3x स्क्वायर, फिर आएगा साइन स्क्वायर x पावर 5 साइन x क्यूब। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। लाइकवाइज इसमें आप बाकी के क्वेश्चंस है आप मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या रहा है, प्रूव दैट दिस फंक्शन, जो मैं सामने लिखूंगा आपके, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये जो मेरी फंक्शन है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। The function is given f of x is equal to mod of x minus 1. It is not differentiable at x is equal to 1. Actually क्या होता है, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये 1 पर वेज बनाएगी, बन गया ना वेज, तो यहां पर टेंजेंट में नहीं ड्रा कर सकता हूं। You know that the geometrical interpretation of the derivative of the function is it gives us the slope of the curve at some point. टेंजेंट का जब स्लोप निकालूंगा मैं इस पॉइंट पर, दैट इज गिवन बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढूंगा तो वो भी मुझे इस टेंजेंट का स्लोप देगा। तो मसला वही है, क्या मैं टेंजेंट ड्रा कर सकता हूं? मैं टेंजेंट तभी ड्रा कर सकता हूं व्हेन द कर्व इज स्मूथ, व्हेन द कर्व हैज गॉट अ वेज लाइक दिस। यहां पर एक्चुअली 2 पॉइंट्स, इन 2 ब्रांचेस के 2 पॉइंट्स मीट करते,
So the curve is not smooth at this point, so no tangent can be drawn at this point. So आप ग्राफ से ही देख सकते हैं that the function is not differentiable at x is equivalent to 1 because the curve is not smooth at x is equivalent to 1. On the rest of the points the curve is smooth. So actually I have to prove geometrically that my curve is not differentiable at x is equivalent to 1. तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस h. ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा. अगर ये होती डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होता f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता बराबर राइट हैंड डेरिवेटिव के. तो आप देखते हैं हम क्या ये है कि नहीं. ये तो मैंने आपको बताया ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है. सो लेट्स कैलकुलेट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1. LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 जिसको हम लिखते हैं लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h अपॉन माइनस h. So this is further equivalent to limit h goes to 0 f of 1 minus h कितना आएगा. अगर f of x है mod of x minus 1 तो f of 1 minus h कितना आएगा. आपको x को रिप्लेस करना पड़ेगा वो 1 minus h तो आएगा mod of 1 minus h minus 1 minus what is f of 1 x के बदले 1 लिख लीजिए तो आएगा mod of 1 minus 1 upon h indeed upon minus h. So this is further equivalent to limit h goes to 0. ये वो और ये चला जाएगा बनेगा mod of minus h. वो मैंने लिखा 1 minus 1 is 0 mod of 0 is 0 upon minus h. So this is further equivalent to mod of minus हाँ limit h turning to 0 वो अपनी जगह ऐसे रहेगा. mod of minus h हो गया h upon minus h. h upon minus h हो गया minus 1. फिर अगर लिमिट लगाएंगे सामने h टर्निंग टू 0 इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं. लाइकवाइज आई हैव टू फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया माइनस 1. राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या मिलेगा. आपको लिखना है लिमिट h टर्निंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाय h नॉट माइनस h. ये मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव है. वेल f ऑफ 1 प्लस h आएगा मॉड ऑफ x के बदले आप लिखेंगे 1 प्लस h. 1 प्लस h माइनस 1 आएगा 1 प्लस h माइनस 1. ठीक है. माइनस f ऑफ 1 तो यही आएगा x के बदले 1 लिखेंगे मॉड ऑफ 1 माइनस 1 वो भी मैंने लिखा. तो 1 और 1 चला जाएगा आएगा मॉड ऑफ h और नीचे होगा प्लस h. ठीक है. मॉड ऑफ h इज h डिवाइड बाई प्लस h वो चला जाएगा आई विल गेट प्लस 1. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1 राइट हैंड डेरिवेटिव इज माइनस 1 तो नहीं बराबर निकल रहे. तो हाउ कैन बी दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. ये जो हमारे पास फंक्शन है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल है. रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल है. सो आज की ये जो एक्सरसाइज है आप ये खुद कंप्लीट करेंगे जो इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं. सो मुझे आप फिर बाद में मैसेज करेंगे. थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर.